السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GTV نیوز اور میں ہوں شائستہ اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے موسم کے حوالے سے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں تیز ہوائوں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری، کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گھروں کی چھتیں اڑ گئی، سولر پینلز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سوات، ایبٹ آباد، پونیر، نوشہرہ اور مردان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سوات میں تیز آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی، جبکہ سوات کے علاقے بری کوٹ میں تیز بارش کے بعد دکانوں میں پانی چلا گیا۔ بونیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ نوشہرہ اور مردان میں شدید گرمی کے بعد بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ رحیم یار خان کے چولستان میں غضب کی گرمی ہے، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ بارشیں نہ ہونے سے بدترین قحط سالی دستک دینے لگا ہے۔ پانی کی قلت کے باعث علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ندیم بڑائچ کی رپورٹ میں۔ رحیم یار خان کا چولستان جو کبھی صحرائے حسن کی علامت تھا، اب خشک سالی کے باعث ایک ویرانے میں بدل رہا ہے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، زمین چیخ رہی ہے اور زندگی کے آثار مٹتے جا رہے ہیں۔ چولستان کے 213 میں سے 202 تالاب خشک ہو چکے ہیں، صرف 11 تالاب باقی ہیں اور ان میں بھی پانی کا ہر قطرہ گنتی کے حساب سے بچا ہے۔ چولستان کے 88,000 سے زائد آبادی پانی کی قلت کے باعث نقل مکانی پر مجبور ہو رہی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہاں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا پانی ہے، وہ بھی خشک ہو رہا ہے، لیکن ہمارا مال جو بچے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، ہمیں بھی پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ ادھر سے 3-4 کلومیٹر ہمیں جانا پڑتا ہے، ادھر بھی کبھی ملتا ہے کبھی نہیں۔ ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں، جانور بیمار ہو رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے فوری پانی کا بندوبست کرے، ورنہ ہمیں یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ 1-2 ٹوبوں میں تھوڑا سا پانی کھڑا ہے، وہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو ہماری حکومت سے اپیل پانی کرے، ہمیں کوئی پانی کا وسائل دیں، تو نہیں تو پھر ہمیں نقل مکانی کرنی پڑے گی، مال ویش بیمار ہو رہے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ چولستان میں رہنے والے 2 لاکھ سے زائد جانور بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ قدرتی چارہ اور پانی نہ ملنے سے جانوروں کی ایک بڑی تعداد بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ خشک سالی کی کنڈیشن ہے، مکمل ڈراؤٹ ہے، وہاں پہ 213 پاؤنڈز ہیں، تالاب ہیں جنہیں ٹوبے کہا جاتا ہے، وہ مکمل طور پہ خشک ہو چکے ہیں۔ پانی کی قلت کے باعث انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی قلت پر نوٹس لیں اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا مستقل حل بھی تلاش کریں۔ ندیم وڑائچ، GTV نیوز، رحیم یار خان۔ ملک بھر کی طرح قصور میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ گیا ہے۔ شہری گرمی سے نڈھال ہیں۔ شہریوں نے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سردائی کے اسٹال کا رخ کر لیا۔ مزید جان لیتے اسی بارے میں وسیم اختر سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح قصور میں بھی سورج آگ برسا رہا ہے، شدید گرمی ہے۔ اگر قصور میں درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 42-43 درجہ حرارت ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈے مشروبات کے اسٹال پہ موجود، جس کے قصور میں کافی چرچے ہیں، جس کو ڈیرہ غازی خان کی مشہور گوٹا سردائی سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کی کثیر تعداد ٹھنڈا مشروبات انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے؟ میں نے دیکھا سردائی کا ٹال لگا ہوا ہے، تو میں ادھر ٹھہرا ہوں، تو میں نے سردائی کا گلاس پیا ہے، لیکن گرمی تو بہت ہے، ٹھنڈا گلاس پیا ہے، مزہ آیا ہے، بہت انجوائے ہو رہا ہے ہمیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی ہے، ان کا کہنا ہے گرمی سے برا حال ہے۔ یہاں پہ گزر رہے تھے سڑک کنارے جو وہ ڈیرہ غازی خان کی جو مشہور گوٹا سردائی بادام ہے، وہاں پہ آ کے سردائی پی ہے اور ٹھنڈک بھی ملی ہے اور دل کو سکون بھی ملا، گرمی کی شدت بھی کم ہوئی ہے۔ جی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہری مختلف جتن کر رہے ہیں۔ ملتان شہر میں بھی آج شدید گرمی ہے، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ گرمی کی ستائش شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شہروز سے۔ جی شہروز، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में गर्मी का राज जो है बरकरार है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इस गर्मी और इस लोड शेडिंग के मसले को हल करने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख किया है। तो हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे, गर्मी भी है और स्विमिंग पूल का ठंडा पानी भी? जी स्विमिंग पूल पे नहाने का अपना ही मज़ा है। गर्मी घर तो वैसे बहुत गर्मी होती है, इसलिए लोड शेडिंग की वजह से तो हम स्विमिंग पूल पे आ जाते हैं यार दोस्तों के साथ, तो काफ़ी मज़ा आता है, यहाँ पे एंजॉय होता है। तो आपको भी हम यही कहेंगे कि गर्मी से बचने के लिए आप स्विमिंग पूल पे आएँ, लोड शेडिंग से भी बचें और ठंडे पानी का मज़ा लें। तो मुल्तान के नौजवान शहरी जो है इस वक्त अपने दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल में जो है ठंडे पानी से नहा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी तो मुल्क भर की तरह पन्नू आकिल भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्ज हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत एक हफ्ते तक बरकरार रहेगी। मजीद जान लेते हैं अकबर मलिक से। जी अकबर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पन्नू आकिल के अंदर भी शदीद गर्मी का राज है। मैं आपको बताऊं, पन्नू आकिल में 43 से 44 सेंटीग्रेड यहाँ पर गर्मी रिकॉर्ड की गई है। और बात की जाए यहाँ पर जो है गर्मी के बाद जो शहरियों ने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया है, जो गन्ने की रस और फालसे का जो शरबत है उसको बड़ी तादाद में शहरी पी रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, लोड शेडिंग के हवाले 10 से 12 घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले जब हमारी यहाँ से डॉक्टरों से बात हुई तो उनका यही कहना है जो शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, निकलें भी तो अपने सरों को ढाँप के निकले। और पन्नू आकिल में इस वक्त भी जो है 43 से 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जब तर्जुमान से बात हुई तो उनका ये कहना है 47 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर गर्मी रिकॉर्ड की जा सकती है आज। और मैं आपको बताऊं, शदीद गर्मी का राज है पन्नू आकिल में। जी घोटकी में भी सूरज आंख बरसाने लगा है। पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इमली आलू बुखारे के स्टॉल का रुख कर दिया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं मोहम्मद फ़हीम शेख से। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, घोटकी में जो है सूरज इस वक्त आग बरस रहा है। पारा तकरीबन 45 सेंटीग्रेड डिग्री से जो है तजावुज़ कर चुका है। लोग जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने जो है इमली और आलू बुखारे के जो जूस के स्टॉल लगे हुए वहाँ पर उन्होंने जो है उनका रुख कर लिया है। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इसी हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। गर्मी का पारा बहुत तेज़ हो चुका है और हम ज़्यादा तासीर के साथ इमली आलू बुखारे का जूस जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो जिगर और मसाने को ठंडा करता है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि जो इमली और आलू बुखारे का जूस है ये जिगर और जो है गर्मी की शिद्दत को कम करता है, मसाने के लिए भी मुफीद है, इसलिए इस जूस का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जी मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी सूरज आंख बरसाने लगा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही DHQ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हीट स्ट्रोक काउंटर कायम कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं अतीकुर रहमान से। अतीक, बताइएगा यहाँ पर कैसी सहूलियात हैं? हाँ जी बिल्कुल, शुजाबाद में भी जो है ना सूरज जो है ना आग बरसाने लगा है। शुजाबाद में तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ना गर्मी का जो टेम्परेचर है वो तजावज़ कर गया। शुजाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हीट स्ट्रोक के हवाले से सेंटर कायम कर दिया गया। डॉक्टर गजनफर अब्बास जो इस वक्त हीट स्ट्रोक सेंटर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे पास जैसे ही हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है, मुख्तलिफ अलामात के साथ आता है, सर चकराना, बुखार आना, उसको मौके के ऊपर तिबी इमदाद हम फराहम करते हैं। जी जैसे कि मैं डॉक्टर साहब की बात सुन कर ये कहता है कि ऐसे मरीज जो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में तशरीफ लाएं ताकि उन्हें बर वक्त जो है ना तिब्बी सहूलत फराहम की जा सके। जी लेकिन सक्खर में सूरत हाल कुछ अलग है। गर्मी का पारा हाई है और सूरज सवा नेज़े पर है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कोई कैंप कायम नहीं किया गया है। मजीद जान लेते हैं इसी बारे में फैसल आराई से। जी फैसल। जी बिल्कुल, सक्खर में भी इस वक्त जो है वो सख्त गर्मी पड़ रही है। सक्खर शहर जो है इस वक्त सख्त गर्मी की लपेट में है। सूरज आसमान से गर्मी का मास ज्यादा बरसा रहा है। सक्खर में गर्मी की बात करूं तो सक्खर में गर्मी का पारा जो है अब वो 42 सेंटीग्रेड से शुरू होकर 47 सेंटीग्रेड तक जा रहा है। इस वक्त भी जो है सक्खर शहर में इस वक्त 47 सेंटीग्रेड गर्मी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। सख्त गर्मी में जो है वो शहरियों ने मशरूबात की जानिब भी रुख किया हुआ है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस सख्त गर्मी में जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से सक्खर में कोई हीट स्ट्रोक कैंप नहीं कायम किए गए हैं। माहिरीन सेहत जो है वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने को शहरियों को मना कर रहे हैं। सख्त गर्मी में शहरी जो है वो कैप का, रुमालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरों को ढांप कर जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त सक्खर शहर जो है वो सख्त गर्मी की लपेट में है। जी
कंदकोट का रुख कर लेते हैं, जहां सूरज आग बरसाने लगा है। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नींबू पानी का स्टॉल का रुख कर लिया है। मजीद जान लेते हैं नादिर अली शेख से। जी नादिर, आगाह कीजिएगा। जी, कंदकोट और तंगवानी के गदनवा के इलाके जो शदीद गर्मी की लपेट में है और शहरियों की जानिब से गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल की जानिब रुकिया हमारे शहरी मौजूद है। मजदूर से जानते हैं इनके बारे में वो क्या कहते हैं। आज गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया है कि 47 से भी डिग्री से भी टेम्परेचर तजावज़ कर गया है, इसलिए हमने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया है। आज आपने शहर की पासंद का ये कहना है कि गर्मी बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पर मशरूबात की जानिब रुक किया है, यहाँ पर ठंडा मशरूबात पीकर गर्मी को कम कर रहे हैं और अपने घर के लिए भी लेकर जा रहे हैं। जी, मीरपुर खास के शहरी शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से दोहरी अजियत में मुब्तला है। हैस्को की जानिब से मीरपुर खास शहर के 16 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री जोन करार देने के बावजूद बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास से अनवर बरोही रिपोर्ट करेंगे। मीरपुर खास की गर्मी फिर तवील लोड शेडिंग, शहरियों का हाल बेहाल हो गया। हैस्को की शहर के 16 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री जोन करार देने के बावजूद भी बिजली की बंदिश जारी है। हैस्को की तरफ से फ्री जोन करार देने से कबल लाइन मरम्मत और मीटर सिक्योरिटी के नाम पर कई दिन बिजली गायब रही, जिसके बाद आवाम को उम्मीद थी कि अब शायद सुकून मिले, मगर उम्मीदों पर पानी फिर गया और फिर एक बार बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज हो गया। कारोबार ठप, तामीराती सरगर्मियां सुस्त और दिहाड़ीदार तबका फाका कशी का शिकार होने लगा। शहरी कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे भी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से यही है हमारी अपील कि भाई लोड शेडिंग ना करें, इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, इंसानों की जानों से ना खेलें आप लोग। मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील है कि लाइट के निज़ाम को जो है दुरुस्त किया जाए। हम बिल भर भर के जो है तंग आ चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर तवानाई और हैस्को चीफ से लोड शेडिंग फ्री जोन्स पर लोड शेडिंग का खात्मा करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। हरे भरे पहाड़ों की चोटी पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने की ऊंचाई पर वाक़े पीर चेला आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से सिर्फ 26 किलोमीटर की मुसाफत पर खूबसूरत सयाहती मकाम है। सब्ज़ाज़ारों, झीलों और चरागाहों की ये सरजमीन सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती है। अरहम शेख रिपोर्ट करेंगे। आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सियाहती मकाम पीर चेला, जिसके हरे सरसब्ज मैदान सियाहों को दावत दे रहे हैं कि वो यहाँ आकर कश्मीर के हुस्न को पूरी दुनिया में दिखाएं। पीर चेला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है। ये वाहिद सियाहती मकाम है जिसकी एक जानिब KPK और दूसरी जानिब कश्मीर के दिलफरेब नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये ग्रीन पास्चर जो है ये बेसिकली इस इलाके के नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर के बुलंद वाला मुकाम की एक यानी सबसे अट्रैक्टिव जगह होती है और जहाँ जो है हम जैसे जो स्याह हैं वो भी आकर महसूस होते हैं। पीर चेला के टॉप पर पहुंचने के लिए आप जीप पर भी जा सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपना दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि रास्ता तो मौजूद है मगर ये रास्ता महकमा टूरिज्म और हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है कि इसे पुख्ता किया जाए। कैमरामैन नाहिद अब्बासी के साथ अरहम शेख, GTV न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 लापता नौजवानों का पता लगा लिया गया। गिलगित इसकर्दू रोड पर गंजीपड़ी के मकाम पर गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाबाक हो चुके हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू, लाशों और गाड़ी को निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि सयाहों की गाड़ी को 16 मई को यह हादसा पेश आया था। जाबाक नौजवानों की शनाख्त वासिफ, उमर, सलमान और उस्मान के नामों से हुई है। ओकाड़ा GT रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 4 अफराद जाबाक हो गए। जाबाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मजीद जान लेते हैं इसी बारे में मुनव्वर रेहान से, जो इस वक्त मकतूल के भाई के साथ मौजूद हैं। जी मुनव्वर। जी बिल्कुल, आज अलल सुबह नदीम नामी शख्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि GT रोड ओकाड़ा पंजाब कॉलेज के करीब पीछे से तेज रफ्तार ट्राले ने हिट किया। जहां पर होने वाले शख्स के भाई नईम मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं इतनी तेज रफ्तार ना जा रहा सी और उन्होंने दे विच लगा जाके उन्होंने सारे बच्चे जेडे कुचल दिते ने। मेरा भाई जेड़ा वो भी कुचल दिता है। जी, जैसा कि आपने उनके भाई की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। सोगवार में से
उनकी एक बेवा ही उन्होंने छोड़ी है। खैरपुर की तहसील गम्बर के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ भाग जबकि 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीएसपी के मुताबिक अफसोसनाक वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया है। मजीद तफ्तीश इसकी जारी है और वाक़े का मुकदमा दर्ज ना हो सका।